تو یاسین ملک کو کچھ ہی دیر میں سزا کا اعلان کیا جائے گا. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا. پچھلی سماعت میں ہم لگاتار بات کریں. ہمارے نمائندے منوج کول اور شبیر ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر میں یاسین ملک کے خلاف فیصلہ آئے گا. دہلی کی NIA کورٹ نے یاسین ملک کو قصوروار پایا تھا. پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کشمیر میں بھی سخت انتظامات سیکیورٹی کے اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. شبیر ہمیں لگاتار اپڈیٹ کرا رہے ہیں. شبیر، جس طرح سے آپ نے کہا کہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات تو ہیں ہی یہاں پر، لیکن سزا کے بعد جس طرح کا اکثر دیکھا گیا پتھر بازی ہوتی ہے، کچھ لوگ سڑکوں پر باہر آتے ہیں، تو کیا یہاں پر سیکیورٹی سخت کرنے کے ساتھ ساتھ 144 لگایا گیا ہے، یا کیا کچھ دھارائیں وہاں پر بتائی گئی ہیں کہ کیا اعلانات کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے؟ جیلانی، دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں کی گئی ہے. جی جی. ہاں، اگر آپ یہاں کی سیکیورٹی کی بات کریں، ویسے بھی یہاں پہ اس علاقے میں زیادہ رہتی ہے، لیکن اب کی بار تھوڑی سی تار بچھا دی گئی ہے اور سیکیورٹی کے CRPF اور پولیس کے افراد یہاں پہ موجود تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب وقت قریب آ گیا سزا کے اعلان کا، اور یہاں پہ جو پولیس کے افراد تھے، کافی نفری تھی، وہ ہٹ گئی. اچانک اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور زیادہ تر وہ سڑک کی طرف گئے ہیں اور اس گلی کو کھلا چھوڑا گیا ہے. جی. یہاں پہ کافی لوگ جمع ہیں. اگر میرے پیچھے بھی دیکھیں کہ کافی جو مقامی لوگ ہیں یا دکاندار مقامی بھی ہیں، دکانیں بند ہیں چونکہ، اور وہ ساتھ ساتھ دکانوں پہ ہی بیٹھے ہیں. اور پتھر بازی کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا اس طرح کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ پولیس نے کافی کارروائیاں کی ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں وہ جیلوں میں ہیں، تو اس طرح کی کوئی امید تو نہیں لگ رہی ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہاں کس طرح کی صورتحال ہوگی. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ کوئی دفعہ نافذ نہیں کی گئی ہے. نیٹ ابھی یہاں پہ آرام سے چل رہا ہے اور امید کریں گے کہ یہ پرامن گزرے، جو بھی حالات ہوں وہ پرامن نہیں گزریں. جی منوج، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس فیصلے کے اثرات واقعی ان تمام لوگوں پر پڑیں گے، وہ تمام لوگ جو اس طرح کی کارروائیوں میں معاون ثابت ہوتے ہیں. سرکار کی یہ کوشش ہے کہ بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو موقع دیا جائے، اور آج بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جنہیں اس طرف راغب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو لوگ حالیہ دیکھیے، ہم نے بھی کئی کیسز میں دیکھا کہ 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے وہ جوائن کرتے ہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں انکاؤنٹر کے مقام پر پائے جاتے ہیں یا تو پھر ہلاک کر دیے جاتے ہیں. تو آج یاسین ملک جیسا ایک بڑا نام، ٹیرر کے نام کے سے جانا جائے گا، ٹیرر فنڈنگ کے نام سے یاسین ملک جانا جائے گا. تو ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا میسج ہے کہ اب یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں کشمیر میں؟ دیکھیں، سرکار کی یہی کوشش ہے کہ نوجوان ملیٹنٹوں کی صفوں سے دور رہیں، اور دوسری طرف جو پاکستان کی کوشش ہے ان کے طرف سے بھی کچھ اوور گراؤنڈ ورکرز ابھی بھی جموں کشمیر میں ہیں، کشمیر ویلی میں خاص طور پر جو سرگرم ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ملیٹنٹوں کے صفوں میں شامل کیا جائے. سرکار لگاتار، چاہے وہ انکاؤنٹرز ہوں، چاہے وہ ٹیرر فنڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں ہوں، یا جو اس کے ساتھ ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی بات ہو، سرکار اپنی طرف سے لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر، خصوصاً کشمیر ویلی کے اندر ملیٹنسی کو ختم کیا جائے، لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کر سکیں. لیکن جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جیلانی، کہ پاکستان کی طرف سے لگاتار یہ کوشش ہے کہ جموں کشمیر میں گڑبڑی جاری رہے. جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مقامی نوجوان ہیں، پہلے جس تعداد میں وہ ملیٹنٹوں کی صفوں میں شامل ہوتے تھے، وہ جو گراف ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے، اس میں کافی گراوٹ دیکھی گئی ہے، جیسا کہ پولیس کا کہنا ہے. لیکن اب بھی وہ جو ٹرینڈ ہے، وہ اب بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں جو ملیٹنٹوں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، بندوق اٹھاتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، کہ وہ چند مہینوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد ہی وہ انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں. لیکن سرکار کی کوشش یہ ہے کہ چاہے وہ ملیٹنٹوں کی صفوں میں نوجوانوں کے شامل ہونے سے یا ان کی شمولیت سے ان کو روکا جائے، وہیں جو بھی اس ملیٹنسی میں وہ لوگ جو شامل ہیں، جو فنڈ اکٹھا کر کے یا نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر ملیٹنٹوں کی صفوں میں شامل کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یاسین ملک کے خلاف جو
जब सज़ा सुनाई जाएगी उसके बाद किस तरह का रुझान होगा, क्या ये जो नौजवान जो कहीं उन ओवरग्राउंड वर्कर्स की बातों में आकर मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं, क्या उसमें कमी वाक़ा पैदा होती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार की ये कोशिश है कि मिलिटेंसी, ख़ास तौर पर जो मकामी नौजवान हैं वो मिलिटेंसी से दूर रहें और जो उनको मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कानून की सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आज 20-30 साल पुराना ये चेहरा जिसने ये जुर्म किए हैं और कई लोग इनके जुर्म से मुतासर हुए हैं, कई लोगों को नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें गई हैं, आज के इस फैसले या जो भी सज़ा सुनाई जाएगी कितनी बड़ी राहत उनके लिए होगी जिनकी वजह से वो मुतासर हुए हैं? देखें, ये जो मामला है जिलानी, ये 2017 का टेरर फंडिंग मामला है। हालांकि यासीन मलिक के खिलाफ और भी केसेस बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि वो जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके कत्ल में मुलविस थे, या रुबिया सईद के का जो अगवा था उसमें उनका हाथ था। ये वो मामलात नहीं है, ये मामला टेरर फंडिंग का मामला है जो 2017 का मामला है। हाँ, ज़रूर वो जो उस वक्त जो टेरर फंडिंग आई, जो पैसा आया, वो अमन कानून की सूरत हाल बिगाड़ने में ही काम आया होगा। जाहिर है वो उसे कोई तरक्याती काम तो हुआ नहीं। लेकिन ये कहना कि डायरेक्टली क्या उन कितने लोगों को इससे राहत महसूस होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मैसेज ज़रूर जाता है कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ या लोगों की इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है तो उसको अगर वो कोई गुनाह करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। बिल्कुल। शब्बीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जैसा कि आपने कहा कि हालात अभी ठीक ठाक हैं, एजेंसीज ने किसी तरह की दफ़ा का कोई ऐलान नहीं किया है। सज़ा के ऐलान के फौरी बाद वहाँ पर इस खबर को लेकर, क्योंकि आज सज़ा का तयन है, आज सज़ा सुनाई जाएगी, इस खबर के हवाले से जम्मू कश्मीर की सहाफ़ती हलकों में क्या कुछ देखा गया आज? देखिए जिलानी, अगर आपको याद होगा 2 दिन कबल जो PDP की सदर है महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा था कि ये जो कन्विक्शंस होती हैं इनसे कोई मसला अभी तक हल हुआ नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है कि उनका इशारा किस तरफ था और क्या था। बाकी जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्लियर है, वो ज़्यादा इस पे तबसरे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद उनके हालात क्या रहेंगे जी। ये साफ बात है। जहाँ तक मकामी तौर पे यहाँ पे लोगों की रिएक्शंस का ताल्लुक है, नजरें लोगों की इस पे बनी हुई हैं। आप भी देखते होंगे कि कितने लोग हमारे लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो ये इस बात में काफी लोगों को दिलचस्पी है कि ये सजा क्या होगी, केस किस तरह का था, बाकी चीजें किस तरह से सामने आएंगी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह की कार्रवाइयां पिछले 2-3 सालों में हुई यहाँ पे, उसकी वजह से जो एक वो आपने देखा होगा कि वो पथराव का सिलसिला या फिर दीगर चीजें जो जुलूस यहाँ पे बरामद होते थे, वो सूरत हाल रही नहीं, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो उन केसों में मुलविस थी। आज हालात ये है कि अगर आपके खिलाफ जरा भी एक शिकायत आती है तो आपको उठा के आपको सीधा आपका रास्ता जेल की तरफ ही जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई मुश्किल सूरत हाल हो। हाँ, जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है तो मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक मिलिटेंसी के आज के दौर में जो नई तरह की मिलिटेंसी अब शुरू हो गई है, इसमें यासीन मलिक रिलेवेंट नहीं थे। टेरर फंडिंग का केस था, वो अलग बात है, लेकिन अब जो मिलिटेंसी कश्मीर में चल रही है उसमें यासीन मलिक जैसे लोग या जो पुराने हुर्रियत वाले लोग थे उनका सिर्फ इतना रोल हुआ करता था, मतलब जो उनके पे इल्जामात लगते थे कि वो फंडिंग करते हैं पथराव के वाकयात की या ऐसे वाकयात की। लेकिन जो अब आज मिलिटेंसी चल रही है, मॉडर्न डे मिलिटेंसी जिसको कह रहे हैं, जो ये इन्होंने रुख बदला है, वो उसका सीधा तार पाकिस्तान से, इसमें कोई बात साबित करने की नहीं है, उसका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हैंडलर से है। जहां तक आप बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनल मनोज जी अभी बता रहे थे कि नौजवानों की तादाद कम हो गई है, जाहिर सी बात है, जो फॉर्मली मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं लोग, ऐलानन जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली, वो लोग काफी कम हो गए। लेकिन जिस तरह की मिलिटेंसी अब ये हो गई है कि जैसे मैंने आपको बता दिया अभी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब
कल वहां पे गए, एक दिन कबल वो अपने कश्मीरी पंडितों से मिलने गए तो उन्होंने साफ कहा कि आप अपने साए पे भी यहाँ भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको अंदाजा लगा होगा कि किस तरह की मिलिटेंसी यहाँ चल रही है। जो पिस्तौल आपने देखे किस नौइयत के आ रहे हैं और साइलेंसर लेके आ रहे हैं, तो सूरत हाल ये है कि आपको कुछ भी नहीं पता कि कहां पे किसके पास पिस्तौल होगी। आप एक पूरी आबादी को शक की नजर से देखते हैं। इसके दो नुकसानात होते हैं जहां तक सिक्योरिटी दस्तों का ताल्लुक है। दो चैलेंज है, एक तो ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो आपको एक बड़ी आबादी पे आपको तलाशियां लेनी पड़ती है, लोगों की जामा तलाशी, उनसे सवाल जवाब। तो वो भी फायदा उन लोगों का होता है जो इस तरह की कार्रवाइयां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग नाराज हो जाएं जी और उनका काम बने। और दूसरा, ये खतरनाक होता है सिक्योरिटी दस्तों के लिए इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना। आप ये अंदाजा लगाइए कि सरमा का जब सीजन आएगा तो फैरन पहन के लोग होंगे, जैकेट पहन के लोग होंगे और एक छोटी सी पिस्तौल लेके कोई भी शख्स किसी को भी कहीं भी गोली मार सकता है। हमने पिछली बार देखा जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, तो किस हाई सिक्योरिटी जोन है वो, इससे ज्यादा सिक्योरिटी कहां हो सकती है। 10 कदम की दूरी पे पुलिस थाना है और मजिस्ट्रेट का ऑफिस है। तो आप सिचुएशन सिक्योरिटी दस्तों के लिए ये ऐसी सूरत हाल मुश्किल है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जो ISI की कार्रवाइयां होती हैं हर दौर में, हमने अलग अलग तरह की मिलिटेंसी यहाँ देखी है। 1987 लेके जी लोग तो 1990 से गिनते हैं, हमने 1987 से, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, मैंने 87 से ही मिलिटेंसी के रंग देखे हैं। तो हमें पता है कि किस तरह से अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग तरीके से अलग अलग चैलेंज बन के सिक्योरिटी दस्तों के लिए मिलिटेंसी आई है। अब की बार जैसे अभी स्टिकी बॉम्ब्स की बात की जा रही है और ड्रोन्स का एक मसला है। फिर अब जो पिस्तौल की ये पिस्टल्स की बात आ रही है कि बड़ी तादाद में पिस्टल्स अंदर आ गए, जो जराए के ताल्लुक से बात की जा रही है। तो इसका इशारा साफ तौर पे मिला भी। 35 से ज्यादा पिस्तौल 2 कार्रवाइयों में पकड़े गए, बरामद किए गए। तो एक चैलेंज यहाँ बहुत है और जब आप सिक्योरिटी दस्ते आप सख्ती से इन चैलेंज का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो लोग एलिनेट हो जाते हैं। तो वो ट्रेडिशनल जो मिलिटेंसी थी यहाँ पे कि किसी ने बंदूक उठा ली, ऐलान कर दिया कि मैं जी इस तंजीम में गया हूँ, वो अब हालात नहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हालात बदले हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जिस तरह से 370 की बात करें या 35 से हटाने की बात है, जिस तरह से सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयां की है, क्या कुछ बड़ी तब्दीली आई? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि वो लोग जो सरकारों को डरा धमका लेते थे, एहतजाज करवा लेते थे, हड़ताल करवा लेते थे, क्या आज वो सूरत हाल बरकरार है? जी जिनान देखें, जब से दफ़ा 370 और 35A ख़त्म हुआ और जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, उसके बाद से जो अमन कानून की सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी पैदा हुई है। अब ये बेहतरी किस तरीके से पैदा हुई है, वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कानून को सख्ती से लागू किया गया। बहुत जहाँ पर पहले अगर कहीं पर पथराव होता था तो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ बहुत कम होती थी और अगर गिरफ्तारियाँ होती थी तो उन्हें काउंसलिंग करके उसके बाद रिहा किया जाता था, जो उनमें रिंग लीडर्स होते थे। लेकिन दफ़ा 370 हट जाने के बाद पुलिस की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहुत सख्त हो गई। जैसा कि शबीर बता रहे थे कि अगर कहीं पर कोई भी एक पत्थर चलाता है या कहीं पे कोई मुल्क दुश्मन नारा बुलंद करता है तो उसका जो रास्ता है वो सीधा जेल की तरफ ही जाता है। तो उस तरह की ये जो सख्ती बरती गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उस वजह से जो जलसे जुलूस हूँ, पथराव के वाक़यात हूँ या उस तरह की जो गड़बड़ी पैदा करने वाली जो वाक़यात हूँ, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाकई में। मैं तो ये कहता हूँ कि वो वाक़यात अब बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। हम पहले ये देखते थे कि एक ज़माना ऐसा था कि जब जुम्मा की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लगभग हर जुम्मे को पथराव होता था, लेकिन जब से यूटी बन गई है उसके बाद से पथराव के वाक़यात शायद एक आया कहीं पर हुआ हो, ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो मैंने पहले भी बताई कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हों, उनका जो रवैया है वो बहुत सख्त हो गया है। अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई में मुलविस पाया जाता है तो उसको सीधे जेल भेज दिया जाता है, और जिससे एक
बिल्कुल। ये हम ये कहें कि एक पैगाम उन नौजवानों तक पहुंच गया है जो शायद कभी ये सोचते कि वो कहीं पर किसी मामले को लेकर पथराव करेंगे, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर उन्होंने पत्थर उठा लिया तो उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि हमने देखा कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अब जो हालात हैं वो उस तरह से काफ़ी कंट्रोल में हैं। कहीं पथराव के जो वाक़यात हैं वो लगभग ज़ीरो हो गए हैं। जल से जुलूसों की जो बात है वो तो उसको उनका नामो निशान ही नहीं है वो। लेकिन मैं एक बार फिर यही दोहराऊंगा कि ये सब उस वजह से मुमकिन हो पाया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है ताकि ये तमाम एक गैर जो जिम्मेदारी की हरकतें हैं और जिस तरह से दहशतगर्दी के मामलात है उस पर लगाम लगाया जाए। मनोज जी, आप और शब्बीर आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ ही देर में वापस आएंगे।